Welcome again to the structured journey for the JEE. Right. So, as I promised that I will discuss everything about this session, this January session of JEE. Right. So, as I've given in my analysis that this in this session there were 7 questions from the straight line. So I'm starting with the mathematics portion of a straight line, and 7 questions were there, and I will discuss each and every question one by one. So it's your time. Just open your notebook and try to solve the questions at least first by yourself. Pause the video, and after that you can go through my discussion, right? So without wasting my time, I can start with the first question. Right at the end, I will give you the formula and the quick revision tips for all the questions, right? So start the question. This is the question, and in this question it was given, it is the first thing is that it is equilateral triangle. Let ABC be an equilateral triangle with the orthocenter, right? So what is orthocenter? Orthocenter is something, this is an equilateral triangle, right? We all know this is an equilateral triangle. So orthocenter is the intersection of all the altitudes. Altitudes means, perpendicular. So perpendicular का जो intersection होगा, that is called orthocenter. And the important and interesting thing is that in equilateral triangle, orthocenter, centroid, circumcenter, all are same, right? So centroid is the intersection of medians, you all know, and circumcenter is the intersection of the perpendicular bisector. So, but here they are saying that it is orthocenter. So, if it is equilateral triangle, doesn't matter. You can say it's centroid, circumcenter, whatever you can say, because in equilateral triangle, definitely it is the same altitude is the median itself, right? So orthocenter is at the origin, right? So this is 0, 0. This is at the origin, and the side BC is on the line. ये जो आपका साइड BC है ना, इसका लाइन का इक्वेशन गिवन है. दिस इज x प्लस 2√2y इज इक्वल टू 4, राइट? तो इस लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है BC लाइन की, राइट? और आपका यहाँ पे ऑर्थो सेंटर गिवन. तो ऑर्थो सेंटर यू नो दैट इज अ सेंट्रॉइड. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स A, तो A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इज अल्फा कॉमा बीटा, एंड हमें फाइंड करना है देन ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ दिस. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी हम बता देंगे लास्ट में. यू नो दैट हमें सिर्फ उसका इंटीजर वैल्यू लेनी होती है, राइट? तो पहले फर्स्ट थिंग इज दैट अगर हम अल्फा बीटा कंपेयर कर ले, दैट मींस किसी तरीके से अगर वर्टेक्स निकल आता है तो अल्फा बीटा इसमें पुट कर देंगे, विल गेट द आंसर. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ वी कैन फाइंड दिस अल्फा कॉमा बीटा, राइट? सो अल्फा कॉमा बीटा हम इजीली निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट बिकॉज दिस इज O एंड दिस इज द लाइन. तो किसी भी पॉइंट से आप किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो यू नो द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द एनी लाइन? तो यू नो द फॉर्मूला. इस लाइन की इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? लाइक ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस. तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज. तो 0 0 से अगर आप इसको पुट करोगे तो इसको पूरा लेफ्ट ले जाओगे, x और y दोनों को 0 पुट करोगे तो इट विल बिकम 0, एंड ये बचेगा आपका -4, राइट? तो बचेगा हमारे पास -4 अपॉन इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करना है और रूट लेना है. तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 8, राइट? तो इसका जो मॉडुलस होगा दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम O टू दिस पॉइंट. तो आई एम सेइंग दिस पॉइंट इज M. So I have calculated this distance is OM. So if you'll calculate it, yes, it is modulus, you can ignore the minus sign. So 4 by root 9, that will become 4 by 3, right? So root 9 का square root, it is 4 by 3. तो you have get the OM. तो हमें ये चीज क्लास 10 से भी पता होती है कि इफ इट इज अ सेंट्रॉइड, तो हमें मैंने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर आर सेम, सो इट डिवाइड्स इट इनटू 2:1 रेशियो, राइट? सो इफ OM is 4 by 3, then what will be the distance of AM? तो AM इसका 3 times हो जाएगा, right? तो 2:1 का रेशियो है, तो you can say that AM will be 3 times OM. AM will be 3 times OM, right? तो 3 times इसको कर देंगे तो AM की डिस्टेंस मुझे मिल गई, that is 4. So if you know that AM, तो किसी तरीके से जस्ट आई वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा. तो अल्फा कॉमा बीटा का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द आंसर.
तो अल्फा कॉमा बीटा कैसे निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो दिस इज 4/3 जो मुझे मिला है, दैट इज द एम, राइट। तो अगर किसी तरीके से अगर आप ये निकाल सको, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो m1 into m2 is equal to -1. If I can find the slope of this line and this line, and दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है that is always -1, right? So यहाँ पे इस लाइन का अगर मैं y is equal to mx plus c से कंपेयर करूंगी तो I can get the slope of the line, this लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, y is equal to mx plus c से कंपेयर करोगे तो it will become -1/2√2, right? So this is the first slope, and the slope of this am, तो am का अगर आप स्लोप निकालोगे, इसको मैं m1 बोल देती हूँ, दिस इज m2, राइट। तो m2 का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो OA का जो स्लोप होगा ना वही am का स्लोप होगा, बिकॉज दिस इज द सेम लाइन इनफाइनाइट तक जाती है, राइट। तो OA का निकालो स्लोप या am का निकालो, बोथ आर सेम। तो y2 minus y1 upon x2 minus x1 से you can find the slope, and this point is given 0,0. तो beta minus 0, that means beta by alpha will be the slope of this. So you will multiply m1 into m2 is equal to -1 कर दोगे, so you'll get the relation in that alpha and beta, right? तो beta by alpha into -1 upon 2√2 is equal to -1. So from here you'll get beta is equal to 2√2 alpha. राइट, तो दिस इज द रिलेशन। अभी हमारा अल्फा बीटा की वैल्यू भी मुझे निकालनी है, तो अगर मैं यहाँ से बीटा और अल्फा में ये जस्ट एक रिलेशन निकला है, तो एक और इक्वेशन मुझे चाहिए होगी, बिकॉज देयर आर 2 वेरिएबल्स, आई नीड 2 इक्वेशंस फॉर दैट। तो अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूं, इस पॉइंट ए से अगर स्ट्रेट लाइन पे अगेन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, किसी भी पॉइंट से, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला जो बताया, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चंस इस बार पूछा है दिस फ्रॉम दिस फॉर्मूला, राइट। तो इस पॉइंट से अगर हम किस लाइन पे, अगर इस पूरी लाइन पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अभी मैंने जस्ट ओरिजिन से इस पे डिस्टेंस निकाला था तो मुझे OM मिला था, बट अगर मैं A से इस पे डिस्टेंस निकालूंगी देन आई विल गेट द AM, और AM की वैल्यू मैं ऑलरेडी 4 निकाल चुकी हूँ, AM की वैल्यू मैं 4 निकाल चुकी हूँ, आई कैन इक्वेट इट, राइट। तो अगर A पॉइंट से इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे यू विल गेट द वैल्यू। तो मैं जस्ट इस लाइन में, ये जो गिवन लाइन है, इसमें x और y की जगह अल्फा और बीटा पुट कर सकती हूँ, राइट, टू फाइंड द डिस्टेंस। तो x की जगह आई एम जस्ट प्लेसिंग अल्फा एंड y की जगह पे बीटा रख दो, तो x की जगह पे अल्फा पुट करोगे यू विल गेट अल्फा प्लस 2√2 बीटा -4, क्योंकि मैं पूरा लेफ्ट साइड ले जाना होता है, तो 2√2 बीटा -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², तो 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर विल बिकम 8, सो 1 प्लस 8, and this will be equal to what, this will be equal to +-4, right। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ इसको तो क्या मिलेगा, राइट। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन मिल गई, एक अल्फा बीटा में यहाँ पे एक रिलेशन भी मिल गया था, तो जस्ट रिप्लेस कर सकते हो बीटा के प्लेस पे 2√2 अल्फा। अगर यहाँ पे बीटा की जगह पे 2√2 अल्फा पुट कर दोगे तो 2√2 अल्फा, तो 2√2 into 2√2 will become 8, right। So alpha plus 8 alpha, so what it will become, alpha plus 8 alpha minus 4 upon 1 plus 8 will become 9, square root of 9 will become 3, so it will become 3 is equal to +-4, right। तो alpha plus 8 alpha is again your 9 minus alpha minus 4 upon 3 is equal to +-4. So if you just do by cross multiplication, you'll get the value of alpha, 9 alpha minus 4 is equal to +-12, right। So I'll get the value of alpha from here, so alpha I'll get, if I'll take plus sign, so then it will become 12 plus 4 will become 16, and 16 by 9, तो एक वैल्यू मुझे मिल रही है 16 by 9। if I'm taking a minus sign, -12 plus 4, -12 plus 4 will become -8, so it will become -8 by 9। तो अल्फा की मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज मिल रही है। अब इसमें से आई हैव टू चेक कि कौन सी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा को यहाँ प्लेस कर दो, अल्फा बीटा में रिलेशन था, सो बीटा इज इक्वल टू 2√2 अल्फा था, तो 2√2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा आल्सो। तो 2√2 से अगर 16 by 9 को मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 32√2 by 9, राइट, व्हाट विल गेट 32√2 by 9, एंड अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 2√2 को तो विल गेट -16√2 by 9, राइट, -16√2 by 9। सो अगर मुझे देखा जाए तो ये एक लाइन गिवन थी, तो इस लाइन के एक साइड पे ही आपका 0 0 भी है, अल्फा बीटा भी है, तो अगर मैं इस लाइन में यहाँ 0 0 पुट करती हूँ, तो अगर इसको लेफ्ट ले जाएंगे तो इट विल बिकम -4, 0 0 पुट करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो अल्फा बीटा
की भी मुझे निगेटिव वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक लाइन किसी भी प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर एक पार्ट पे देखोगे तो अगर नेगेटिव है तो सारी वैल्यूज इस प्लेन की नेगेटिव होनी चाहिए, इस साइड की पॉजिटिव होनी चाहिए। सो आई कैन इग्नोर द पॉजिटिव वैल्यूज। So finally, the value of alpha and beta, which I will consider, they will become minus 8 by 9 and minus 16 root 2 by 9. Right? So this is my alpha and beta. So I will just place the value of alpha and beta in the given part and can check the answer. So it will become minus 8 by 9 plus root 2 times beta put करना था, तो अगर मैं इसको root 2 से multiply करती हूँ तो I'll get minus 32. 16 root 2 into root 2 will become minus 32. So it will become minus 32 by 9. So finally I'll get minus 32 minus 32, it will become minus 40 by 9. Right? So I'll have to take the mod as it is given in the question. So it is approximately 4.444 you are getting. So they are asking for the greatest integer part, and you know the greatest integer part, I'll have to consider only the integer part of it. So answer will be 4, right? So this was a good question, I can say. This was actually क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिंपल ही था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हो जाता है। मैथ्स है, इतना तो चलता ही है, इतना तो बेसिक है, राइट? तो यहाँ पे हमने बस फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ एक ही चीज यूज की है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया एक पॉइंट से एक लाइन का, और एक m1 into m2 is equal to -1, और उसके बाद आई गया है, राइट? So answer is 4. You can check your answer. And we'll go for the second question. What's the second question? Okay. Angles. Let the angles made with the positive x-axis by two straight lines drawn from the point 2, 3 and meeting the line x plus y is equal to 6 at a distance root 2 by 3 from the point P be theta 1 and theta 2. This is somewhat good question, and मुझे इसमें theta 1 plus theta 2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है ना कि let the angles made with the positive x-axis. तो positive x-axis से, this is suppose positive x-axis, अब मैंने एक लाइन ले लिया, this is the line, right? इस पे एक पॉइंट है, this is 2, 3. The point is 2, 3, and this line is meeting another line. This line is meeting another line, so I'm just drawing another line. This is the line. This line is given x plus y is equal to 6. X plus y is equal to 6. तो इस लाइन को सपोज कर लेते, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q पे मीट कर रही है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये गिवन, ये डिस्टेंस गिवन। अब दो लाइंस बोल रहे हैं ऐसी, तो मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ली है, तो अगर इस लाइन में ही मुझे दो पॉइंट्स ऐसे थीटा 1 थीटा 2 के मिल जाते हैं, तो वो दोनों वैल्यूज कंसीडर हो जाएंगी, तो इस तरीके की दूसरी लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है, और मुझसे दोनों एंगल्स का सम फाइनली पूछ रहे हैं, राइट? So they are just asking about the sum of the two angles. So I'm just drawing and I will calculate theta, and this will give two values of theta 1 and theta 2, and I will finally add it, right? So important thing is this कि मुझे ये वाला वैल्यू गिवन root 2 by 3, right? तो PQ अगर मुझे गिवन, तो कैसे भी करके अगर मुझे Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए, क्या मिल जाए? Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हाउ कैन वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट Q, राइट? तो मुझे सिर्फ ये पॉइंट पता है, तो 2, 3 का मतलब होता है इफ आई विल कंसीडर इट एज ओरिजिन, सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट? तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ ये वाली डिस्टेंस कितनी जाएगी, बिकॉज दिस इज योर 2 एंड दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से देखो तो ये एंगल भी थीटा है, और अगर रिजॉल्व कर लो इसको थोड़ा फिजिक्स लगा के, है ना, तो इस पॉइंट को देख सकते हो, दिस इज रूट 2 by 3, तो दिस विल बिकम रूट 2 by 3 cos थीटा, एंड दिस विल बिकम रूट 2 by 3 sin थीटा, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट this portion is root 2 by 3 cos theta, and this portion is root 2 by 3 sin theta. So I can find the coordinate of Q. तो Q आपका ये वाला पूरा हो जाएगा और ये वाला पूरा, that means coordinate of Q you can say that 2 plus root 2 by 3 cos theta, right? What is the coordinate? अगर आपने coordinate लिख लिया ना, आपका आंसर आ जाएगा root 2 by 3 cos theta plus 2, और इधर से अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 है एंड ये root 2 by 3, तो this is root 2 by 3 sin theta plus this value is 3, right?
So this is 3. तो अगर आपने Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लिया ना तो मोर देन 50% काम हो जाता है. एंड ये पॉइंट, so this point is on the line x plus y is equal to 6. We already know the coordinate x and y. तो अगर ये पॉइंट इस लाइन का है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मींस x और y को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ, राइट. तो x प्लस वाई को अगर आप इसमें पुट कर देते हो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 तो क्वेश्चन में गिवन था. तो इन दोनों को ऐड करके 6 के इक्वल करो. तो यहाँ से आ जाएगा √2/3 cos थीटा प्लस 2 प्लस √2/3 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 6. This is given in the question. तो if I will add these two things, तो √2/3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा. तो √2/3 can take it as common and it will become cos theta plus sin theta and 3 plus 2 will become 5 इधर जाएगा तो 6 minus 5 is 1. So इसको अगर मैं राइट ले जाती हूँ तो यहाँ से बचेगा मेरे पास cos theta plus sin theta is equal to √3/2, right? This will be reciprocal and after that you can square both sides because I need to find the theta and I'll get the two values and finally I'll have to add it also, right? So first squaring both sides if you'll do, then you'll get cos square theta plus sin square theta, that will become 1, right? So 1 plus a square plus b square plus 2, it will become 2 sin theta cos theta also and is equal to square karo, it will become 3/2, right? So 2 sin theta cos theta will become sin 2 theta, so it is 1 plus sin 2 theta is equal to 3/2. So sin 2 theta will become 3/2 minus 1 will become 1/2. So sin की 1/2 पे दो वैल्यूज बताओ जल्दी से. sin की 1/2 पे दो वैल्यूज अगर मैं देखूं, sin 30 is 1/2. So 2 theta 30 डिग्री को I can write pi/6 and second value second quadrant में sin theta is again positive, you can write pi minus pi/6, that will become 5 pi/6, right? So यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज अगर मैं निकालूं तो दो वैल्यूज आ रही हैं. तो थीटा 1 मुझे मिल जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लोगे, इट विल बिकम pi/12 एंड द सेकंड वैल्यू यू विल गेट 5 pi/12, right? So one is theta 1 and another is theta 2. If you'll add it, you'll get 6 pi/12, that means pi/2. So the answer is pi/2, right? So this was again a good question क्योंकि इसमें लाइन 2 बोल रहा था और हमने एक लाइन से दो एंगल निकाल के सॉल्व किया, राइट? तो दिस इज अगेन समवट अ गुड क्वेश्चन एंड फॉर्मूले के नाम पे हमने यहाँ कुछ यूज नहीं किया, बेसिक्स यूज किया. बेसिक कोऑर्डिनेट मस्ट बी क्लियर. And after that the third question. अच्छा ये क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन अच्छा एंगल बाइसेक्टर का दिया. इसमें क्लास 10th की जो थ्योरम तुम लोग सिमिलैरिटी में पढ़ाती हो उसमें वो वाली चीज यूज हो जाएगी क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे A B C, 3 points. If the equation of the bisector of the angle ABC, तो हमें बाइसेक्टर की इक्वेशन अल्फा बीटा के टर्म में दी है तो मैं इसको कंपेयर करके अल्फा बीटा निकाल दूंगी. आफ्टर दैट विल जस्ट स्क्वायर इट एंड गेट द आंसर, राइट? तो अगर मुझे 3 पॉइंट्स गिवन है, राइट, तो फर्स्ट पॉइंट इज ABC, राइट, सिंपल. तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ इसको, तो A पॉइंट इज गिवन दैट इज 1,0 एंड B पॉइंट इज 2,-1 एंड द थर्ड पॉइंट इज 7/3, 4/3, right? So 3 points are given. If the equation of angle bisector of the angle ABC, that means this angle का angle bisector बोल रहे हैं, right? तो angle bisector you know that this angle will become equal to this angle. तो हमें पता नहीं चाहिए कि what is the angle bisector theorem. तो क्लास 10th में पढ़ते हैं तो AB upon BC is equal to AD upon DC, right? तो AB upon BC is equal to AD upon DC. तो क्लास 10 तक ही जितना हमें ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है उतना ही यूज हो जाता है. आगे 11th 12th में कोई आगे फर्दर ज्योमेट्री नहीं है तो उसका बस एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है. तो AB upon BC is equal to AD upon DC. तो you'll just need to use the distance formula in that. तो AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. यहाँ से क्या आएगा 2 - 1, मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ. 2 - 1 हो जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर इज 1, तो अंडर रूट का 1 एंड -1 - 0 इज 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन BC की डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा. यहाँ तो फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा. 2 - 7/3, 2 - 7/3 का होल स्क्वायर एंड -1 - 4/3, राइट? सो -1 - 4/3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू AD अपॉन DC. देखो AD अपॉन DC हम इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि अगर मुझे AD DC का रेशियो पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा क्योंकि D पॉइंट हम निकाल सकते हैं फिर तो सेक्शन फॉर्मूला से, राइट? तो अगर मुझे ये दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता है, D का पॉइंट अगर निकल जाए तो मुझे बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी. बाइसेक्टर इज योर BD, तो BD की इक्वेशन मिल ही जाएगी. 2 पॉइंट पता है तो फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी, फिर कंपेयर करके अल्फा बीटा निकल जाएगा, सिंपल.
तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 इट विल बिकम √2 अपॉन 2 - 7/3 इट विल बिकम 6 - 7 से 1/3 -1/3 का स्क्वायर इट विल बिकम 1/9 एंड इट विल बिकम -3 - 4 is -7 -7/3 का स्क्वायर will become 49/9 and 49/9 if I'll solve it further AD upon DC, right? So I can see that √2 and this is I'm getting under root 50 upon 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 2 पर 3 हो जाएगा एंड 50 का स्क्वायर रूट अगर मैं करती हूँ तो इट विल बिकम 5√2, तो √2 एंड √2 विल गेट कैंसल्ड आउट, तो AD और DC का जो रेशियो मिल रहा है मुझे 3/5 मिल रहा है, राइट? सो मुझे यहाँ पे 3/5 अगर इसका रेशियो मिल गया, राइट, तो आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D. So you can find the coordinate of D by using section formula, right? तो क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, so 3 into 7/3, right? So 3 into 7/3 m1 x2 plus m2 x1, so 5 into 1 upon 5 plus 3 is 8 and m1/2 यानी कि 3 into 4/3, 3 into 4/3 plus 5 into 0 will become 0 upon 5 plus 3 will become 8. So 3 and 3 will get cancelled out, 3 and 3 will get cancelled out, so it becomes 7 plus 5. 7 plus 5 is 12/8. So 12/8 here and this 4/8. So finally if I'll reduce it, we'll get a 4 3 ja and 4 2 ja, so 3/2 comma 1/2, right? तो 3/2 का 1/2 मुझे D पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट मिल गया, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता है, तो B एंड D दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, जस्ट बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, सिंपल। तो मैं BD की इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, तो BD की इक्वेशन को ही कंपेयर करके आंसर आना है, तो BD की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मेरे पास B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, -1 एंड D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3/2, 1/2, सो फाइनली आई कैन राइट y minus y1 x1 y1 I am taking this, y minus y1 is equal to m, तो m आप लिख सकते हो y2 minus y1 upon x2 minus x1, so it will become 1/2 minus plus 1/2 y2 minus y1 upon x2 minus x1, so it will become 3/2 minus 2. This is slope and x minus x1, right? this को simplify कर लो further, first simplify करोगे you will get y plus 1 is equal to 1/2 plus 1 will become 3/2, 3/2 minus 2, it will become minus 1/2, 3 minus 4, that means it will become minus 1/2 and it is x minus 2, 2 will get cancelled out, so minus 3 से if you multiply you'll get finally y plus 1 is equal to minus 3 in times x minus 2, so y plus 1 is equal to minus 3x plus 6, right? So I'll take everything to the left side, so final equation will become 3x plus y minus 5 is equal to 0. So this is the equation for the angle bisector. If you compare it with the given equation here, you can compare and get the value of alpha and beta. So alpha will become 3 and beta will become 1, right? So we need to find alpha square plus beta square. Alpha square will become 9, beta square 1, so answer is 10, right? So answer will be 10. So finally your answer will be B part 10, clear? So I think in this question also there was just angle bisector theorem was used. And next we are going to the next question, fourth question. A and C be the two diagonally opposite vertices of a rhombus. You must know that what is rhombus. Rhombus is a parallelogram, right, in which all sides are equal and diagonals are perpendicular bisector, right? तो diagonally opposite vertices, okay, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे A B C D, correct? तो A is 1, 2 and C is also given, that is -3, -6, and इसकी sides AD and BC are parallel to the line. AD and BC are parallel to the line this, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है. इफ B का कोऑर्डिनेट दिया है मुझे अल्फा कॉमा बीटा एंड D का कोऑर्डिनेट दिया है गामा प्लस डेल्टा, तो मुझे चाहिए था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा. तो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, रोम्बस दिया है, राइट? तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो तुम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के इसका कोऑर्डिनेट निकाल दो, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 - 3. 1 - 3 is -2, तो -2 upon 2 is
-1 and 2 minus 6 is -4. -4 upon 2 is -4 upon 2 is -2, right? -4 upon 2 is -2, correct? Right? So we can find the midpoint of this AC. तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका भी मिड पॉइंट होगा. तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल दे दिया इसने, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका भी मिड पॉइंट यही होगा. तो अगर यहाँ से मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाती हूँ तो अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 एंड बीटा प्लस डेल्टा, व्हाट इज दैट? बीटा प्लस डेल्टा अपॉन 2 इज -2, राइट? सो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू आ रही है -2 एंड बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू आ रही है -6, करेक्ट? तो इन सबका एडिशन ही तो करना था. तो -2 -4 इज -6 और -6 का हमसे मॉड लेने को बोल रहे हैं. सो आंसर इज +6. तो दिस वाज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन. इसमें कुछ भी जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्टली आ गया 2 लाइन में, करेक्ट? So it was a simple question. And the next question is, a rectangle is formed by the lines x is equal to 0, y is equal to 0. तो ऐसा 10th में भी करते थे. तो हम इसे रेक्टेंगल बनाने को कह रहे थे. x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y is equal to 0. y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x is equal to 0, राइट? तो x और y is equal to 0 लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस. हमने इक्वेशन बना ली और उसके अंदर x is equal to 3 and y is equal to 4. So x is equal to 3. This line is your x is equal to 3 line and y is equal to 4 line. 1, 2, 3, 4. So this line is y is equal to 4 line, right? तो point L is let the line L be perpendicular to this line. तो मेरी एक रिक्वायर्ड लाइन है L जो इस लाइन के परपेंडिकुलर. तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर अगर लाइन बनानी होती है तो उसका स्लोप में निकाल सकती हूँ m1 into m2 is equal to -1. तो फर्स्ट आई फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. सो y is equal to mx plus c से अगर कंपेयर करोगे तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा दैट विल बिकम -3, राइट? तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप आएगा that will become m1 into m2 is equal to -1, so slope will become 1/3, right? After that and हमें बोल रहा है कि let the line L be perpendicular to this line. तो कोई एक लाइन है आपकी, जस्ट इमेजिन करो एक लाइन है, वो इसके तो परपेंडिकुलर है बट तुम्हारे इस रेक्टेंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो अगर कोई भी लाइन अगर रेक्टेंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है तो डेफिनेटली वो उसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन से जरूर पास होगी, राइट? तो आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज 3,4, राइट? तो इसका जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा, सिंस दिस पॉइंट इज ओरिजिन, राइट? तो 3,4, तो 3 + 0 upon 2, 3/2 and 4 + 0 upon 2 is 2. तो 3/2, 2. तो अगर कोई लाइन अगर एरिया को 2 इक्वल पार्ट में, रेक्टेंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कोई ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है. तो इसके परपेंडिकुलर है और उसको डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट में, तो लाइन इससे जरूर पास होगी, राइट? तो अगर मुझे किसी लाइन का, इफ आई नो द स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, तो इसका मुझे स्लोप पता है, लाइन इस पॉइंट से पास करी, तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकती हूँ, राइट? तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y minus y1. Line is passing through this point, so this point will become x1 y1. So y minus y1 is equal to m is slope will become 1/3. m x minus x1, so x minus 3/2, correct? तो after that you can simplify, just by cross कर लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे to become 3y minus 6 is equal to x minus 3/2. so अगर मैं इसको 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आई एम राइटिंग हियर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ तो इसको आ जाएगा, इट विल बिकम 6y minus 12 is equal to 2x minus 3. तो करना क्या था? तो ये अच्छा ठीक, ये लाइन जो बनी है, इस लाइन की मुझे डिस्टेंस निकालनी थी फ्रॉम द गिवन पॉइंट. सो पॉइंट वाज गिवन, तो इस पॉइंट से मुझे इस लाइन की, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखोगे तो इसको सारा इस साइड ले जाती हूँ, तो 2x minus 6y क्या बन जाएगी इक्वेशन? 2x minus 6y and 12 minus 3. 12 minus 3 will become 9. If I'm not wrong, है? तो 2x minus 6y plus 9 is equal to 0. तो ये लाइन बन गई. इस लाइन की इस पॉइंट से इक्वेशन निकालनी है. तो अगेन द सेम फॉर्मूला, किसी पॉइंट से किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो, राइट? तो अब x की जगह 1/2 पुट कर दो इसी लाइन में और y की जगह -5 पुट कर दो. तो मैं डायरेक्टली पुट करके डिस्टेंस निकाल रही हूँ, मॉड लगा के निकलती है. तो x को मैं 1/2 पुट करूंगी तो 2 into 1/2 minus 6 and y की जगह -5 plus 9 upon under root of a square plus b square. So 4 plus 36. So it will become 4 plus 6 का square will become 36.
So 2 and 2 will get cancelled out, and this is minus 6 minus 5 will become plus 30 plus 9 39, and 1 plus 39 it will become, यहाँ लिख देती हूँ, 40 upon root 40 it will calculate it. So 40 upon root 40, that means it will come just under root 40. So under root 40 को you can write 2 root 10, right? So 2 root 10 is the answer, right? Under root 40. So this question was also not difficult. So these two question was not difficult at all. And I'm moving to the next question. Sixth question is there. अच्छा, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था, 2 स्टेटमेंट था, इसमें करेक्ट चेक करना था, you'll have which one is correct, both are correct or not. तो ठीक है, इसको तो तुम जस्ट वेरीफाई करके भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे A, B are the two vertices of a triangle whose orthocenter. Okay, तो थर्ड वर्टेक्स ये होगा कि नहीं, तो इसको जस्ट वेरीफाई करके चेक कर लो, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. यहाँ पे A, B, C, अगर तुम्हें 3 पॉइंट्स गिवन है, तो दिस पॉइंट इज 5, -1, and the B point is -2, 3, and the C point is -4, -7. So as I have already explained that orthocenter is the intersection of the altitudes, right? So if I'll just find the altitudes, so here it is not given that is an equilateral triangle or anything, so I don't know that it is centroid or not. So it is orthocenter, that means definitely it is the intersection of एल्टीट्यूड्स, राइट. तो मैं करना क्या है इसमें, बस इसका स्लोप निकाल के वेरीफाई कर दूं कि हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्लोप निकालती हूँ, इस लाइन का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, आई थिंक दिस इज -7, राइट. हाँ ठीक है. तो अगर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते हैं, तो -7 - 3 इज -10. तो अगर हम यहाँ से इसको स्लोप निकाल रहे थे ना, राइट. हाँ, तो y2 - y1, तो -7 - 3 इज -10, एंड x2 - x1 करोगे तो आएगा -4 + 2. So -4 + 2 is -2. So if you simplify it, you will get 5. तो इसका स्लोप आ रहा है 5, और अगर इसका स्लोप निकालते हैं, क्योंकि मुझे इसको ऑर्थोसेंटर 0 0 वेरीफाई करना है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 - y1, यानी कि -1/5. तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ से स्लोप आ रहा है -1/5, यहाँ से आ रहा है 5. दूसरा टाइप वेरीफाई कर सकते हो, तो इट इज करेक्ट, क्योंकि m1 × m2 इज -1 इज कंफर्म. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट. सेकेंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या रहा है, पॉजिटिव नंबर 2a, b and c are the 3 consecutive terms of the AP. तो ओके, AP में क्या होता है, 2b = a + c, यानी कि मिडिल टर्म का ट्वाइस कर दो, और ये फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का एडिशन, यानी कि 2a + c के इक्वल होगा ही इफ इट इज इन AP. और मुझे कहना था कि ये अगर है, तो क्या ये इस लाइन के संग कॉन्करेंट होगी एट दिस पॉइंट. ऑलराइट, तो कॉन्करेंसी की कंडीशन हमने 10th में पढ़ी थी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, राइट. तो अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन गिवन है, राइट, ax + by + c = 0, और दूसरी लाइन मैंने इसमें से बना ली है इसकी AP की कंडीशन से. तो AP की कंडीशन से जो मेरी लाइन आ रही है, दैट इज 2a - 2b + c = 0. इसको पूरा राइटली जाके लिख दिया मैंने. तो अगर हम a1/a2 = b1/b2 कंपेयर करते हैं, तो a is here, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से x/2 आएगा. क्या आएगा, x/2, और यहाँ से b and b is there, so you can write y/-2. तो it is written x है, x/2, and y/-2 is equal to c/c, it will become 1/1. तो अगर हम देखें यहाँ से कंपेयर करके, तो x की वैल्यू आ रही है 2, एंड y की वैल्यू आ रही है, y क्रॉस करके y की वैल्यू आ रही है -2, राइट. तो करेक्ट, 2 का -2 इज गिवन, तो बोथ आर करेक्ट, राइट. तो 1 and 2 both statements are correct in this. So this is the last question of the straight line of this session. Okay, so let us go through this question. Let the point A between parallel lines L1 L2. So I'm drawing just the 2 parallel lines here. ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हो गई, L1 and L2, राइट. तो पॉइंट A इज बिटवीन समवेयर, क्या बनाती हूँ, दिस इज द पॉइंट A. पॉइंट A लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस फ्रॉम L1. इसकी डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो ये वाला जो डिस्टेंस L1 से गिवन है वो 6 यूनिट है. यहाँ से जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 3. तो यू कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज 9. तो 6 + 3 is 9, एंड ये पॉइंट तो आपका A हो गया. और जो बाकी के इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, द क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है, और जो बाकी के 2 पॉइंट्स है B and C, दे लाई ऑन द लाइन L1 and L2. तो एक पॉइंट जो B होगा वो आपका L1 लाइन पे है, और एक पॉइंट C में यहाँ कहीं ले लेती हूँ, C पॉइंट L2 पे. तो A B C आपका बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल.
ठीक, तो दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, हमें निकालना है ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो साइड इसकी कुछ भी ले लो, साइड से सारी इक्वली होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये ए हो जाएगी, सारी साइड क्या हो जाएंगी, ए हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें पता ही है कि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होता है, सारे एंगल इक्विलेटरल के 60 हैं। ओके ये एंगल आपको नहीं पता है, राइट, तो अगर आपको ये एंगल नहीं पता है तो इसको मैं थीटा ले लेती हूँ, इस एंगल को मैं क्या ले लेती हूँ, थीटा, करेक्ट। तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा लगा सकते हैं, ध्यान से देखना। तो यहां से अगर तुम इस वाले ट्रायंगल में अगर साइन थीटा यूज करते हो, साइन थीटा इज p/h, तो ये हाइपोटेनस तुम्हें a पता है, ये 3 पता है, तो यू कैन राइट साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बिकम 3/a, राइट। और अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देती हूँ, तो ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करे, तो दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि ये डिस्टेंस तो मुझे ऑलरेडी 9 गिवन है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस वाली 9 है, क्योंकि आधा 6 और 3 करके दिया था इन्होंने, और ये 9 है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है। तो जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ ध्यान देना था, ये 60 डिग्री इक्विलेटरल की वजह से थीटा, ये तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 60 प्लस थीटा, राइट। तो ये वाला जो पूरा एंगल है आपका वो 60 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अगर इसमें भी साइन थीटा लगाते हो तो साइन 60 प्लस थीटा, तो p/h करोगे तो इट विल बिकम 9/a, क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम 9/a। तो साइन a प्लस b की आइडेंटिटी हम लोग क्लास 11th में पढ़ लेते हैं। तो साइन a प्लस b की आइडेंटिटी होती है साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 60 इज √3/2 साइन a cos b cos थीटा प्लस cos a cos 60 इज 1/2 cos a sin b इज इक्वल टू 9/a, राइट। तो अगर पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ लिखूंगी तो क्या आएगा, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 18/a, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ रही है, मुझे निकालना क्या था इसमें, अच्छा मुझे a चाहिए था, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू में ऑलरेडी पता है 3/a, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 3/a, साइन थीटा पता है तो cos थीटा भी निकाल ही दो। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे इट विल बिकम 9/a स्क्वायर, राइट। तो cos थीटा की जगह आई कैन पुट यहाँ पे √3 और यहाँ लिख दो √1 माइनस 9/a स्क्वायर प्लस साइन थीटा की जगह लिख दो 3/a इज इक्वल टू 18/a। इसको सिंप्लीफाई करके बस a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो a की वैल्यू निकालो यहाँ से, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। तो क्वेश्चन हो ही चुका है क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। तो अगर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 18 माइनस 3 15/a यहाँ से आ जाएगा, और मैं यहाँ क्या बचेगा √3, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, √1 माइनस 9/a स्क्वायर एंड इट विल बिकम 15/a। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको कर देते हैं, तो यार स्पेस नहीं हो रही है, तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो इट विल बिकम 3 टाइम्स, इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, इट विल बिकम 1 माइनस 9/a स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर इज 225 अपॉन a स्क्वायर, सिंपल। तो अगर हम इसमें और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम यहाँ से अगर मैं a स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, राइट, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, या फिर ये 3 से रिड्यूस हो रहा है, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, ओके राइट। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 75/a स्क्वायर है, ये 9/a स्क्वायर है, 75 प्लस 9 तो 1 इज इक्वल टू 9/a स्क्वायर को राइट ले जाओ, 75 प्लस 9, 75 प्लस 10 है 85, तो हो जाएगा 84, राइट, इट विल बिकम 84/a स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 84। तो मुझे क्या चाहिए था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर आपका 84 आ चुका है, तो 84 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8 और 21 √3 इज आंसर, राइट। सो 21 √3 ऑप्शन इज देयर, बी पार्ट, राइट। तो व्हाट यू हैव सीन दैट क्वेश्चन वाज नॉट, दिस क्वेश्चन वाज अगेन नॉट डिफिकल्ट। √3/4 साइड स्क्वायर लगाना था, तुम्हें साइड की वैल्यू निकालनी थी, साइड की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट किया हुआ था, तो बेसिक क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूले के नाम पे अगर मैं बोलूँ तो लास्ट में मैंने कहा था कि डेफिनेटली आई विल गिव यू द फॉर्मूलाज वेयर यू कैन राइट ऑल द फॉर्मूला यूज्ड।
तो हमने क्या ऑर्थो सेंटर और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो भी फॉर्मूले यूज किए, देयर आर वेरी बेसिक फॉर्मूला, इसमें कोई भी डिफिकल्ट या कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ बाहरी से आगे आए, तो सब कुछ पढ़ा हुआ था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, है ना। तो जिसने प्रैक्टिस किया होगा उसके लिए तो सीरियसली इट वाज नॉट डिफिकल्ट। एंड for more guidance you can join my regular classes. Thank you for watching and I will see you in the next video. Thank you.